میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس یونیورسٹی کے لیے جتنی بھی محنت ہو سکے، دل و جان سے، مال سے، جس طرح بھی ہو سکے، آپ اس یونیورسٹی کو قائم کرنے کے لیے کیجیے۔ انشاءاللہ جو آنے والی نسلیں ہوں گی وہ آپ کو یاد کرے گی۔ آج سر سید صاحب کو پوری دنیا یاد کرتی ہے، ہندوستان کا بچہ بچہ یاد کرتا ہے، کشمیر کا نہیں پورے ہندوستان کا بچہ آج علی گڑھ میں پڑھتا ہے۔ علی گڑھ کا نام روشن ہو رہا ہے، اتر پردیش کا نام روشن ہو رہا ہے۔ جب کسی تعلیمی ادارے کا قائم ہوتا ہے تو اس کے شہر کا نام روشن ہوتا ہے، اس کے پردیش کا نام روشن ہوتا ہے، اس جگہ کا نام روشن ہوتا ہے۔ آج سر سید صاحب نہیں ہے لیکن دنیا کو جانتی ہے۔ مولانا مطیع الرحمان صاحب نے جو قائم کیا ہے، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یقین ہے کہ یونیورسٹی کشن گنج کے لیے نہیں ہوگی، پورے بہار کے لیے ہوگی۔ تو میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کام کو جلدی سے جلدی مکمل عطا فرمائے۔ اور میں ہمارا کتابوں کا ادارہ ہے، ادارہ احاطہ اسلام کے نام سے، جب آپ کے یہاں ضرورت ہوگی اور یونیورسٹی تیار ہو جائے گی، انشاءاللہ تقریباً 2 سے 5 لاکھ کی کتابیں میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ 5 لاکھ کی انشاءاللہ کتابیں دوں گا۔ نحمدہ و صلی علی رسول کریم، اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ حضرات کے ساتھ ایک جگہ بیٹھنے کے لیے اللہ توفیق دی، اللہ قبول فرمائے۔ اور شکریہ ادا کرتا ہوں آئے ہوئے سبھی عظیم شخصیت کا، اور اس میں سے ایک مقبول شخص جو میرے بڑے بھائی جناب ڈاکٹر زبیر النبی صاحب تشریف لائے ہیں۔ آپ نے آ کر کے ایسا ایک پیغام دے دیا کہ جیسا کہ ہمیں ایک روشنی مل گیا۔ اس کے لیے میں آپ کا بہت ممنون مشکور ہوں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے بڑے بھائی جناب مولانا مطیع الرحمان صاحب کا، جس نے ہم لوگوں کو یاد کیا اور ہمیں تشریف لائے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی نہال صاحب کا، جنہوں نے دعوت دے کر کے بھائی اسد صاحب جیسے لوگوں کو، کیفی صاحب بھائی کو، اور ہمارے انصار صاحب کو، افسار صاحب کو، ہمارے بھائی عمران صاحب کو، مولانا صدام صاحب کو، میرے ماموں مولانا وسیع صاحب کو، اور جتنے ہمارے دیو شاکر صاحب کو، جتنے ہمارے دوست ہیں، سب کو بلانے کے لیے مرشد کے سلطان صاحب کو بہت بہت شکریہ جناب صاحب۔ میرے کچھ مشورے اس میں تھے، چونکہ مجھے انہوں نے اس ناچیز کو صدر بنا دیا ایک بچے کو، تو بچے کا مشورہ بچہ ہی جیسا ہوگا، بڑا تو نہیں ہو سکتا، لیکن شاید مقبول ہو انشاءاللہ۔ اور میں بیٹھ کے سمجھ رہا تھا کس طریقے سے کام کیا جائے، کیونکہ حضرت نے بہت ذمہ داری ہم لوگوں کو دے دیا، اور حضرت نے ذمہ داری لا کے دیا، چونکہ یہ ذمہ داری ہماری حضرت کی نہیں، حضرت کی کوشش سے کالج وہ لا کے ہمیں دے دیے۔ اب ہمیں اس کالج کو بنانا کیسے بنے، اس کے لیے ہمیں آگے پہل کی ضرورت ہے۔ تو میں کئی چیز میرے ذہن میں بات ہے، جیسے میرے ماما نے ایک سوال کیا کہ کس طریقے سے کام کیا جائے۔ امام بخاری کے نام سے ہمارے علاقے میں دیوبند سے اور دیگر مدارس سے پڑھے کم سے کم نہیں 15,000 عالم مجھے لگ رہا ہے، بالکل، اور 15,000 عالم سے ہم 1,000 روپے لیں گے انشاءاللہ، زیادہ نہیں لیں گے اللہ نے چاہا۔ اس کے لیے ماما تیار کمر کس لیں گے آپ، اور جہاں چاہیں گے وہاں ہم لوگ جائیں گے آپ کے ساتھ، بہت آسانی سے چلتا ہوگی۔ اور علماء کے ساتھ بھی ہم ایک میٹنگ ضرور کریں گے سب علماء کے ساتھ۔ ایک میری سوچ ہے، مشورہ ہے، فیصلہ نہیں۔ دوسرا میں نے سوچا یہاں سب کریم لوگ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ میرے بابول بھائی سیاسی اختلاف ہے، دونوں ایک ساتھ مخیال رہے گی پنچایت سے، لیکن ہمارے پنچایت علاقے کے مسئلے کے لیے مجھ سے 100 گنا جواب مل جاتا ہے، اس کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ جزائے خیر میرے بھائی، میں اور بابول بھائی انشاءاللہ الرحمن اور آپ لوگوں کی مدد دوں گا۔ کوچا تھا اسی طریقے سے بھائی اسد صاحب ٹھاکر گنج، ہمارے کیفی ٹھاکر گنج، ہمارے بھائی جو ہیں افسار دوست میرے دوست بیٹھے ہیں، انصار شاکر بابو سب لوگ بلوا کرا، ہم لوگ کم سے کم 3 لاکھ اینٹ آپ کو چندہ کریں گے انشاءاللہ۔ بھاٹا جائیں گے، بھاٹا والوں سے کہیں گے بھائی ہمیں ٹیم بنا کے جائیں گے سر، کہ بھائی مجھے نہیں، صرف 2,000 اینٹ چاہیے آپ کا، اور 2,000 اینٹ یونیورسٹی کے لیے چاہیے آپ کا، اور ایسے جگہ آپ دے رہے ہیں زندگی بھر آپ کے بچے ناز کریں گے، اور آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ دنیا کو ٹکے کا سارا ہم نے ایک اینٹ دے کر یونیورسٹی کو کھڑا کیا، وہ نسل در نسل آپ کو کبھی بولیں گے نہیں، فراموش کی جائے گی، اس کے لیے مقبول ہوگا۔ کہ شاکر بھائی کا مشورہ کیسا ہے؟ اور انشاءاللہ اگر ہمارے پاس 3 لاکھ آ جائے تو شروع کرنے کے لیے بہت کافی انشاءاللہ، پھر اس کے لیے بالو وغیرہ کا بھی انتظام یہ سے ہو جائے گا۔
इसीलिए अब ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं बस दो ही मशवरा कि इसके लिए मैं चाह रहा था, सब मशवरा आपसे ले रहा हूँ, आप बड़े रफीक दोस्त मेरे हैं। एक दावतनामा की शक्ल में जैसे उन्होंने दिया वही दावतनामा ये थी कि माशाल्लाह आपकी यूनिवर्सिटी हो रहा है, हर भाटा वाले को हिंदू भाई तो आदाब, आपके यूनिवर्सिटी आ रहा है सीजन में, चूंकि अभी वो ईद अब दे नहीं पाएंगे आपको, वो देंगे अक्टूबर और सितंबर में, क्योंकि नए ईद निकलते और अभी भी दे सकते हैं, जरूरत पड़ने से अभी भी दे सकते हैं, लेकिन अभी जबरन उसको खुशी और जाए हाँ है। लेकिन इसको मैं चूंकि मदरसा चलाता हूँ, मैं अपने मदरसे का 2 मंजिला बना लिया, 2 रुपए का ईंट कभी नहीं खरीदा, अदना सा इदारा में मस्जिद बना लिया, 2 रुपए का ईंट नहीं खरीदा, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, पूरे बिहार का एक नाज होगा। लोग आज भी सर मैं फख्र महसूस करता हूँ जब मुझे लोग पूछते हैं कि आपका मदरसा किधर है, वही तो नहीं तो रेलवे स्टेशन से दिखाई देता है, मैंने कहा वो भी मेरा ही मदरसा है, लेकिन मेरा दूसरा मदरसा है, वो भी हमारा मदरसा है और वो मरकजी मदरसा है। अल्लाह ताला इस मरकजी को कबूल किया है और इस मरकज के तरह इन बाग के पेड़ों को आपने बुलाया है, ये पेड़ उगने वाले हैं, ये झुकने वाले नहीं है, इनके इतने पानी दिया गया, इतना पानी दिया गया है कि पेड़ तैयार हो चुका है, ये पेड़ इंशाल्लाह झुकेंगे नहीं और फलदार फल इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे, आप कभी तनहा महसूस नहीं करेंगे, हम लोग आपके साथ हैं। बस ये दरख्वास्त है मेरे मामू से, आपको कौन नहीं जानता, बड़े बाप के बेटे हैं और हज़रत मौलाना अफराद साहब के सगे भांजे, हाँ आप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, खुद हज़रत के कॉलेज चलाते हैं, आप उलमा के साथ एक मीटिंग कराएं, मौलाना सद्दाम साहब नौजवान बहुत फाल आलिम हमारे यहाँ बैठे हैं, मौलाना मुश्किल साहब हमारे उस्ताद, हमारे कारी दुरूस साहब के 5-6 शागिर्द बैठे हैं, मैं खुद शागिर्द हूँ, इजहार शागिर्द है, हमारा अजीजम शागिर्द है, हाजी नजीर शागिर्द है, वो अजीजम शागिर्द है, कई शागिर्द यहाँ बैठे हैं, करीब 600 हफ़ाज़ मुझसे बन चुके हैं और ठाकुरगंज के मकबूल आदमी हैं। इंशाल्लाह ऐसे लोग जब निकलेंगे, शाहरुख बैठा हुआ है, तो इंशाल्लाह उलमा के साथ मीटिंग होगी और इस यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी ऐसा आदमी इंशाल्लाह मना नहीं करेगा, आपको कोई विदेश जाने की जरूरत नहीं, हम लोग किसने से काम शुरू करेंगे और किसने से काम होगा। फिर जो बाकी रहा इंशाल्लाह मेरे सर यहाँ बैठे हैं रजवी साहब, बड़े लोग हैं, ये थोड़े से कतरा दे देंगे तो हमें काफी है इंशाल्लाह। और इनके स्पीच में इंग्लिश इतना समझता हूँ, इतना नहीं हूँ, लेकिन कुछ समझा, इसमें मैंने ताली बजाया, अब सही समझा कि गलत समझा सही सच बात है, अपनी बात हाँ बहुत कम वक्त में आपने कीमती बात कहा। तो सर इंशाल्लाह उलमा के साथ एक मीटिंग करेंगे हम रमजान के बाद, और हर भाटा वाला एक टीम बना के हम लोग जाएंगे, आपको ट्रैक्टर का पैसा देना है, बाकी ईद हम लोग ला करके देंगे, काम आप शुरू करिए, इंशाल्लाह बहुत कामयाब काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हदीस पाक में आता है लम यश्कुरिल्लाह मन लम यश्कुरिन्नास। कुरान के आयत का तर्जुमा ये है कि नेक काम अच्छे काम में एक दूसरे की मदद किया करो, और जहाँ जुल्म ज़्यादती का मामला होगा, गुनाह का मामला होगा, उसमें कथित तौर पर तुम ताउन ना किया करो। और हदीस का मफहूम ये है कि वो शख्स अल्लाह और रब का शुक्रगुजार बंदा नहीं हो सकता है जो बंदों का शुक्रगुजार ना हो। मैं इस मौके पर तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से पुरखुलूस आपका खैर मकदम भी करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ, बल्कि इदारा तौहीद ट्रस्ट खुद शुक्रगुजार है कि कौम के सरबराहान रहनुमा और सुचिंतक लोग यहाँ एक अदना दावत पर तशरीफ़ फरमा है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस मकसद के खातिर आज के इजलास कायम हुआ है, अल्लाह ताला इनके कुदूम मुबारक बनाए, इनके यहाँ हाजिरी को मुबारक बनाए और उसकी एक बुनियाद कायम करे इस इदारे को तकमील तक पहुँचने के लिए। यकीनन जो इज़ा सदक़ अल अज़्म व ज़हर सबील, जब इंसान नेक इरादे करता है, अज़्म व सम्मम होता है, तो उनके रास्ते खुलते हैं। मैं आज ये तस्वीर अपने दिलों के अंदर सजा रहा हूँ कि जिस तरह से लोग हमारे अच्छे लोग आपने इस सीमांचल के पसमंदा इलाके के कुर्दा इलाका के में होने के बावजूद जो करीम लोग यहाँ हमारे पास मौजूद हैं, इसके माध्यम से मैं मुस्तकबिल की एक तस्वीर में देख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जिस अज़्म इरादा के साथ ये तौहीद आगे चल रहा है, यकीनन उनके साथ
सारी कौम हमारे जुड़े हुए हैं और इसको मुकम्मल तक पहुँचने के लिए इनके अज़ाइम पुख्ता हैं। मैं इसी के दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको नेक सोचने और समझने और अच्छा काम अपनी बरादरी और अपने कौम और मिल्लत के लिए करने की पूरी तौफीक नसीब फरमाएँ। अल्लाह आमीन। वसल्लल्लाहु तआला नबी मोहम्मद वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद। Muhtaram Hazrat, I'm very happy to be here on this August gathering, which is discussing about setting up of a university in the name of the great scholar Muhammad bin Ismail Bukhari rahmatullah alayh. In fact, we always हम हर वक्त यही बताते हैं हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हैं, हमें बहुत आगे जा सकते हैं। तो कभी कभी हमें रास्ता मिलते हैं, उस रास्ते हमें पकड़ना है। तो माशाअल्लाह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम में एक बहुत बड़ा इदारा इधर कायम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कायम कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत मेहनत ज़रूरी है, माली मेहनत एक है, उससे ज़्यादा एकेडमिक और एकेडमिक सपोर्ट ज़रूरत है। मेरा एक बहुत बड़ा बुजुर्ग हर वक्त बताते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब इंतकाल हुए, उन्होंने कोई बैंक बैलेंस नहीं दिया, लेकिन काम करने वाले आदमी को दिया। जब हम काम करने वाले आदमी रहेगा तो पैसा कोई सेकेंडरी और टर्शरी और चीज़ है, पैसा तो आएगा जब हम काम करते हैं। तो वी नीड अ ग्रेट मिशन, great approach, great activity to have an academic excellence for that. Inshallah, I also offer my all full-fledged support, inshallah, for this effort. And especially I am from the field of education. I did my PhD from Jawaharlal Nehru University, and I have specialization in education. I did work in Mahatma Gandhi University as a department head, and I have worked in government colleges as well. And I have helped in setting up some of the private universities as well. So I'll be offering all my support in setting up of the institution. Whenever you need me, I'll be there, inshallah. Assalamu alaikum. कि हमारे किसान में यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आज यूनिवर्सिटी कायम हो गई और खासकर मौलाना मतीन सल्फी साहब की मेहनत से यूनिवर्सिटी कायम हुई है। कुछ मशवरे हैं, इंशाअल्लाह हम लोग इस पर अमल करेंगे और वक्तन फ़वक्तन जो है बैठे रहेंगे। 2 साल की मुद्दत में हमको एक बार नहीं सैकड़ों बार बैठने की ज़रूरत होगी और आप लोगों से हज़ारों बार मशवरा लेने की ज़रूरत होगी। जिनके पास जो मशवरा हो, जिनके पास जिस तरह की जो सलाहियत हो, उससे हमें नवाजें। हम लोग इंशाअल्लाह आप लोगों के हर तरह के ताउन के मोहताज हैं। जिनके पास इल्मी और एकेडमिक तजुर्बा है, वो तजुर्बा हासिल करेंगे, वो ताउन लेंगे उनसे। जिनके पास ये पैसा देने की हैसियत है, वो पैसा देंगे। जिनको ईंट देने की हैसियत है, ईंट देंगे। जिनको मिट्टी देने की हैसियत है, वो मिट्टी देंगे। जिनको बालू देने की हैसियत है, वो बालू देंगे। हाँ, कोई अगर कुछ भी नहीं दे सकता है, लेकिन है कि हाथ उठा के तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ ही कर सकता है। इस यूनिवर्सिटी को बना दे तू, पता नहीं किस बुजुर्ग और किस शख्स की दुआ अल्लाह कबूल फरमा ले और ये काम हमारा में हो जाए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का। आप लोग अपना वक्त इस यूनिवर्सिटी के लिए दिए, इंशाअल्लाह ये आपके लिए सदका जारिया लिखा जाएगा। और आप माशाअल्लाह मुख्तलिफ ज़िला के मुख्तलिफ जगह से आए हैं, कोई बहादुरगंज से, कोई ठाकुरगंज से, कोई हर ब्लॉक से माशाल्लाह आप लोग आए हैं। आप एक हैसियत से आप अपने ब्लॉक के, अपने इलाके के, अपने गांव के सफ़ीर हैं इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के लिए। और आप हैसियत सफ़ीर इस यूनिवर्सिटी के बारे में अपने पूर्व जवार में, अपने अक़रबा के दरमियान में, अपने रिश्तेदारों के दरमियान में इसका चर्चा करें कि ये यूनिवर्सिटी बन रही है और हमारे लिए खुशखबरी है, हमारे लिए, हमारे नौनिहालान के लिए मुस्तक़बिल का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनेगा उनको यहाँ तालीम हासिल करने का। अभी जैसे कारी साहब बता रहे थे कि मैं अपने बच्चा को कोटा भेजना चाह रहा था, कारी साहब बता रहे थे कि मैं अपने बच्चा को कोटा भेजना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं है, हालात ऐसे हैं, मुझे हिम्मत नहीं कि मैं अपने बच्चा को भेजूँ। बेशक ये चीज़ आज अभी नहीं, ये चीज़ हमारे बुजुर्ग लोग, अल्लाह उन लोगों को गरीब रहमत फरमाए, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले ये बात सोचते थे कि हमारे इलाके में वो घर जिनके पास अल्लाह ने कुछ नवाजा है तो अपने बच्चा को देवबंद भेजता है, लखनऊ भेजता है,
मुबारकपुर भेजता है, बनारस भेजता है, दिल्ली भेजता है, मुंबई भेजता है पढ़ने के लिए। और वैसे तादाद कितने थे हमारे समाज में? बमुश्किल 5 से 10%। 90% वक्त में जो कुछ पढ़ लिया, सरकारी स्कूल में जो कुछ पढ़ा दिया, उसके बाद लग गया खेती बाड़ी में। उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो घर में पैसा की ज़रूरत है, ए बेटा तू जा पंजाब जाके पैसा कमा के ला। पंजाब जाके अपना खेती बाड़ी करता है वहाँ पे, या मजदूरी करता है और खट के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी की बात है कि जो लोग आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले किशनगंज छोड़ के बाहर गए, आज माशाल्लाह उन लोगों का एक मकाम है। जो लोग लिल्लाह इखलास और लिल्लाहियत के साथ काम किए अपने लिए, आज उन लोगों का एक मकाम है। आप लुधियाना में जाइए, उस दिन एक भाई साहब आए थे लुधियाना की मिलने के लिए, उनको अच्छा लगा यूनिवर्सिटी के बारे में, गुलदस्ता फूल माला लेकर आ गए ऑफिस में। अब बेचारा मिठाई लेके भी आया, अब मिठाई खिलाया और गुलदस्ता दिया हमारे जिम्मेदारान को, हम लोगों को। तो वो रहता है लुधियाना में, वहाँ माशाल्लाह बड़ा उनका कारोबार है। अभी हमारे एक पड़ोसी हैं बगल में, एक कैम्पटेक्स खोला है, तो लुधियाना में इनका बड़ा बिजनेस है। इसी तरीके से किशनगंज के लोग मुख्तलिफ शहरों में अच्छा काम कर रहे हैं। कहना ये है कि जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, अच्छे से काम किए तो अच्छा खासा पैसा कमा लें। लेकिन अब ज़रूरत है कि आप लोग ताउन करें कि ये यूनिवर्सिटी कायम हो। आप अगर कल पढ़ नहीं सके, आज कल आपका बच्चा पढ़े, इसकी जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। तो मैं आप लोगों को फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और 4 तारीख को संग बुनियाद का प्रोग्राम है, जिसमें बिहार सरकार के 11 बजे प्रोग्राम शुरू होगा। संग बुनियाद का काम रहेगा। इसमें डॉक्टर अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के वजीर हैं, भवन निर्माण मंत्री, वो रहेंगे। और उनके कलम से अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी का जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो पास हुआ है। हम तमाम लोग उनके लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको लंबी उम्र दे और मज़ीद उनको तौफीक दे हम लोगों के लिए ऐसा अच्छा काम करने का। इसी के साथ साथ इस प्रोग्राम में जमा खान साहब आएंगे, जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। उसके बाद डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब आएंगे। उसके बाद आपके डॉक्टर खालिद अनवर साहब आएंगे, सलमान रागिब साहब आएंगे। हमारे मुरब्बी और हमारे रहनुमा मौलाना वली रहमानी साहब आने के लिए तैयार थे, लेकिन वो इस वक्त बहुत शदीद बीमार है और पारस में ICU में एडमिट है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप तमाम लोग अपनी अपनी मस्जिदों में हर नमाज के बाद उनके लिए खुसूसी दुआ फरमाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। ऐसे रहनुमा और ऐसे कायद मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत यानी हज़ारों करोड़ों में एक पैदा होते हैं इस तरह के कायद, जो हमें उनकी शक्ल में हमें मिला हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनका साए शफ़क़त और रहमत हमारे ऊपर तादिर रहे। हम उनके लिए दुआ करेंगे। इसी तरीके से हमारे इस प्रोग्राम में मौलाना अली साहब आएंगे, मौलाना हारून साहब आएंगे, मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब को भी हम दावत दिए हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ। इस तरीके से डॉक्टर अहमद अब्दुल हई साहब आएंगे, जो बिहार के बहुत बड़े सर्जन हैं। और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ शहरों से इंशाअल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। आप तमाम लोग बहैसियत मेज़बान इस प्रोग्राम में आए और प्रोग्राम को कामयाब बनाए, मेरी भी आप लोगों से गुजारिश है। और कोई बात किसी के पास हो तो पूछ सकते हैं, वरना मीटिंग को यही हम खत्म करना चाहेंगे।